So a very warm good evening to all of you, and at home or maybe resumed at workplace today. So welcome to this RSM Lemon Consultech webinar on business resilience advisory. This session में we are going to talk about 10 critical action points क्या होने चाहिए organizations के लिए while they resume the operations. उसके ऊपर हम बात करेंगे. I'll go a bit slow initially because there are a lot of people still joining, so we'll allow people to join. Until then, just a lot of people here know RSM Astute, RSM Lemon as a group, पर फिर भी as an introduction for a few people जो नए हैं, who may not be knowing us properly. RSM Astute Consulting Group India की 6th largest accounting consulting group है. And it is part of RSM International, which is the 6th largest accounting consulting group globally. हमारी India group strength, total team strength 1700 people की है, presence in 11 key cities across the country, और काफ़ी professional services हम provide करते हैं जिसके अंदर audit, corporate finance, corporate and tax advisory, GST, information technology, so software solutions, technology solutions, IT security, operations consulting, वगैरह वगैरह. So the team that we have includes chartered accountants, MBAs, engineers. It is a cross-functional, multidisciplinary team. And overall, the growth in the organization is fueled by entrepreneurial zeal and passion. Our clients include a lot of large corporates, multinationals से लेके small businesses, SMEs, family-run businesses. It is a very wide spectrum of clients that we cater to. During this COVID-19 period, we came up with a lot of analytical publications, newsflash, toolkits, to enable our clients to really deal with the situation on a variety of topics. We have been continuously updating and helping our clients. I am sure आप में से काफ़ी लोगों ने ये news flashes, webinars वगैरह देखे होंगे, but by any chance अगर आपने miss किया हो तो please reach out to us. करीबन 50 research notes या news flashes हमने issue किए हैं. We have done more than 15 webinars. उसमें से काफ़ी webinars का video recording भी available है. So we'll be glad to share all that information with you. So coming to the background of the subject, as you all know, COVID-19, it all started in March 20 में ये पूरा किस्सा start हुआ, and now as we come out of the lockdown in a phased manner, not just in India, globally, जो real economic impact है वो तो अभी अब पता चलेगा. अब तक I think that was still not very prominently known because everything was shut down. So now that the businesses resume, liquidity crisis से लेके receivables, payables, litigations, there are going to be a whole host of issues which people will be facing. So while we really understand and go further on that, and still a lot of people are joining, let me take this opportunity to run a small poll to understand from the participants what are the key challenges that they and their businesses face in these challenging times. So I am just launching a poll. This is an anonymous poll. This is just for our all understanding, सबके understanding के लिए कि सब लोगों कौन सी situation में है. So I'm sure on the screen now you can see a poll which is there. Request you to select, go through the question, और आपके context में, आपके business में which are the key issues you are facing, वो आप select करें. I again repeat, this is an anonymous poll. इसका कोई specific और intention नहीं है. We'll just share the results for the advantage of everyone to know
कि सब लोगों की क्या कॉमन चैलेंजेस है. We'll give a minute for this. There are 3 questions if you scroll down. So if you have finished one, you can go to the second. If you finish the second, please go to the third. So we'll give 30-40 more seconds for people to finish this. And this list may not be exhaustive. So what we are saying is that broadly, some of the key thoughts we have captured. So that gives an indicative list, not an exhaustive list. ये सेशन हम जो आगे करेंगे, it is going to be primarily in Hindi and English, but at the end we'll have a question answer session, and there I'll try to address them in the language that you ask. Okay, so I'm going to end the polling and show the result on the screen in a while, so that all of us can see the results. So 60% of the people have mentioned that cash flow is their key challenge, which is very obvious, and that is one thing on which we are going to talk. ये session में उसके लिए बात करेंगे. 46% of the people feel कि reviving the sales is going to be a great challenge. 14% say digital transformation. Surprisingly, 29% of the people say getting workers back to work and their safety is going to be a challenge. Risk management, 31%. Rebuilding supply chain is 26%. Cost management and staying viable is 46%, and all of the above is 9%. The second question was, what are you doing to address the challenges? जिसके अंदर 71% लोगों ने कहा है prepared a plan and executing it. So that is extremely encouraging. 9% are clueless, need assistance. 20% have engaged someone to assist, and 6% leaving everything to luck. That may not be the best thing to do, पर 6% लोगों ने ये लिखा है. The last question was, how optimistic are you in dealing with the crisis and coming out better? तो जिसके अंदर 23% ने लिखा है very optimistic, 46% are optimistic. So cumulatively optimistic and very optimistic are almost 69%. That is again very, very encouraging. Congratulations to the group, to the participants. 20% are neutral, 6% are pessimistic, and there is no very pessimistic. Fantastic. So with this, let us move ahead. ये पूरे सेशन का जो कोर थॉट प्रोसेस ये है कि कंपनीज नीड टू रीइन्वेंट देमसेल्व्स. अगर सरवाइव करना है, ग्रो करना है, प्री क्राइसिस लेवल पे वापस कंपनी को ले जाना है, तो बहुत सा रीइन्वेंशन करना पड़ेगा. At RSM Astute Lemon Group, we have been constantly trying to help our clients and businesses at large. We are solidly standing behind all of you. और ये सिचुएशन में कैसे अपन कलेक्टिवली बाहर निकल सके, उसके लिए we have been doing a lot of work. And उसके ऊपर से ये 10-point action plan we have compiled, which we are going to discuss in this session. Before I go on to that, let us just quickly have a look at the current situation. कोरोना का global situation अभी क्या है? तो इसमें almost all the important countries are covered on this slide, and वहाँ जो curve है, corona, it started going up and then gradually coming down in a lot of countries. आप देखेंगे Australia, China, already the curve has reversed.
ऑलमोस्ट नील लेवल तरफ जा रहा है। इवन इटली, जर्मनी, फ्रांस, साउथ कोरिया, द फर्स्ट रो में जितने भी कंट्रीज है ऑलमोस्ट सब जगह पे द कर्व हैज रिवर्स्ड। Similarly, even Japan and Turkey. So the best countries are in the green. The other countries are denominated in orange or yellow, will be visible on your screen. And then there is the red ones. So Argentina, Brazil, Canada, India, Mexico, Russia, Saudi Arabia, Indonesia, South Africa. ये सब जगह पे अभी भी कर्व बढ़ रहा है। कनाडा थोड़ा डाउन हो रहा है, but other places it is still going up. And United Kingdom and US, it has started going down, but very, very slowly. It is more like a U-shaped going down. So इसके ऊपर से एक चीज क्लियर हो रही है कि जिस कंट्रीज ने ये पहले फेस किया वो धीरे धीरे बाहर आने लगे हैं, वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी भी रिज्यूम हो रहा है। पर जहां पे अभी भी रेड है, खास करके साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, तो अमेरिकन कॉन्टिनेंट नॉर्थ एंड साउथ दोनों और मिडल ईस्ट एशिया के अंदर काफी कंट्रीज में अभी भी काफी चैलेंजेस है। एंड स्पेशली इंडिया की सिचुएशन देखे, एज वी ऑल नो एवरी डे द नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं। अभी भी वी हैव नॉट रीच्ड द पीक एंड इट इज अज्यूम्ड कि सम टाइम इन जुलाई ये पीक रीच करेंगे और फिर ये केसेस, नंबर ऑफ केसेस डाउन होना चालू होंगे। The various services that we have been offering to clients to face this situation का ये list है। I'm not reading all of them, but some of them are very important, so I'm just mentioning capital restructuring advisory, raising capital from banks, especially for MSMEs, mergers acquisition, outsourced CFO services, जिसके अंदर temporary हमारी कंपनी में से, हमारी टीम में से someone is deputed as a CFO in your company, and they are available for next 2-3 months to assist you in the entire process of navigating through this crisis. Putting in place a risk management framework, ये सब के ऊपर अपन ज्यादा बात करने वाले हैं। Business continuity planning, insolvency liquidation related services, cash flow management and budgeting, very important, digital transformation, labor law structuring, HR consulting, efficiency improvement, जिसमें लीन वगैरह सर्विसेज आती है, रिव्यूइंग कॉन्ट्रैक्ट्स एंड जीएसटी एंड टैक्स ऑप्टिमाइजेशन, अगेन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी आर गोइंग टू टॉक दैट लेटर। तो ये 10 पॉइंट critical action plan what we have articulated, I am sharing with you, will go slide by slide, but just to capture the entire action plan on one slide. So the first key action plan is cash flow planning and budgeting. Second is organizing additional financing facilities and using government schemes. Third है recovering amounts stuck up in GST and income tax. Fourth है recovering overdue receivables and optimizing other assets. Fifth, optimizing the supply chain for reduced cost and continuity. Sixth, optimizing the manpower cost. Seventh is efficiency in operations. Eighth is renegotiating contracts to reduce cost or enforcing force majeure. Ninth, digital transformation. 10th, protecting whatever you have through risk management and business continuity planning. Now, this is not in a particular order, although we have organized in a fashion where we first focus on the cash flow and liquidity issues, then look at the medium term aspects जिसके अंदर efficiency related points है, and longer term के अंदर जिसके अंदर digital transformation, risk management जैसे issues है. So broadly it is immediate survival related actions, थोड़ा फिर medium term में क्या होना चाहिए और फिर longer term में क्या होना चाहिए. तो उस तरह से ये पूरा 10 point action plan है. So let us look at each of this एक के बाद एक. First, cash flow planning and budgeting. So cash is the king in any case in all circumstances, but more so अभी के time में. It is extremely valuable and as a resource, और आपके पास enough cash reserves हो to meet next 2-3 months में जो भी unforeseen भी requirements आने वाली है उसको आप properly meet कर पाए, उसके लिए cash required है. उसके लिए एक पूरा cash flow planning करने की जरूरत है, which should be a month wise cash flow plan. Focus on cash flows for the next 12 months.
तो ये जो सिचुएशन है कोविड-19 की, वी बिलीव जो इमीडिएट क्राइसिस तो चलो 2-3 महीने में धीरे धीरे सॉल्व होने लगेगी। इंडिया एज अ इकोनॉमी और ग्लोबल इकोनॉमी भी उसमें से बाहर आने लगेगी। हावेवर जो प्री क्राइसिस लेवल पे जाने में 12 महीने तक का टाइम लग सकता है, इफ नॉट मोर। एंड ड्यूरिंग दिस एंटायर पीरियड लिक्विडिटी क्राइसिस फेस होगी मार्केट्स में, पेमेंट आना दिक्कत रहेगा क्लाइंट्स के पास से। तो वो सब केस में कैश फ्लो का पूरा प्लानिंग 12 महीने का करना पड़ेगा। कैश आउटफ्लोज के रूल्स बनाने पड़ेंगे। व्हाट डू आई मीन बाय रूल्स इज कि कौन से कैश आउटफ्लोज है जो आपको सही में इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट है और पेमेंट करना ही पड़ेगा। कितनी चीज है जो आप पोस्टपोन कर सकते हो, या अभी 1% आपने दे दिया, 25%, 30% और बाकी का अमाउंट पोस्टपोन कर सकते हो। कितनी चीज आज के सर्वाइवल के लिए जरूरी है, कौन से एक्सपेंसेस ऐसे जो लॉन्ग टर्म के लिए है। ऑल दिस के लिए एक रूल का सेट होना चाहिए और बेस्ड ऑन दोज रूल्स एक्सपेंडिचर शुड बी मेड। सो अभी के लिए मान लेते हैं कि आपकी कैश सिचुएशन कंफर्टेबल भी है आज के दिन, फिर भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कंफर्टेबल आज है तो रोज ये कंफर्टेबल रहने वाला है। इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स द सिचुएशन कैन स्टिल डिटीरियोरेट। वो ध्यान में रखते हुए ये कैश आउटफ्लो के रूल्स बनाने चाहिए। 2021 का एक पूरा बजट होना चाहिए, जो फिनेंशियल बजट नॉर्मल हम बनाते हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर की जो भी फिनेंशियल पोजीशन है उसको एक्स्ट्रापोलेट करके नेक्स्ट ईयर में नॉर्मली हम बजट बनाते हैं। However, for financial year 2020-21, that should not be an extrapolation of the last year's financial statements. It should be a zero-based budgeting. What does it mean? Zero-based budgeting एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर आप ऐसे समझ लो कि आपका बिजनेस एक नया बिजनेस है, यू आर स्टार्टिंग अ फ्रेश, एक स्टार्टअप है। तो हर एक एक्सपेंस के लिए आप कितना बजट रखोगे उस हिसाब से, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत से एक्सपेंसेस सालों से चले आ रहे हैं और उसके अंदर हर साल 5-10% का इंक्रीमेंट होता रहता है, एंड दैट वी अज्यूम कि ये प्रॉपर है। अब कभी भी उसके अंदर डीप ड्राइव करके नहीं देखते हैं कि इसमें कितना रिड्यूस करने का स्कोप हो सकता है। व्हेन यू डू जीरो बेस्ड बजटिंग, बिकॉज यू आर स्टार्टिंग विथ अ अजम्पशन कि ये पूरा नया बिजनेस है, आपको नए तरह से करना है, यू स्टार्ट विथ एवरीथिंग एज अ जीरो कि लास्ट ईयर तो ये सही नहीं, आज पहली बार ये एक्सपेंडिचर का मुझे बजट करना है, तो व्हाट इज एन अमाउंट विच इज रीजनेबल, मेरे बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से क्या बजट एक्सपेंस का होना चाहिए। तो उस तरह से जो बजट बनाते हैं उसको जीरो बेस्ड बजटिंग कहते हैं। मेरे हिसाब से वो करंट सिचुएशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सिनेरियो प्लानिंग एंड बजट अंडर डिफरेंट सिनेरियोस। तो स्ट्रेस टेस्ट करना पड़ेगा, सेंसिटिविटी सिनेरियोस बनाने पड़ेंगे, वर्स्ट के सिनेरियो के हिसाब से बजट क्या रहेगा, कैश फ्लोस क्या रहेंगे, बेस्ट के सिनेरियो के हिसाब से क्या रहेगा, और उसका कांस्टेंट ट्रैकिंग करना पड़ेगा। मंथ ऑन मंथ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखना पड़ेगा कि वेदर वी आर गोइंग मोर टुवर्ड्स द बेस्ट केस और इज इट गोइंग मोर टुवर्ड्स द वर्स्ट केस, और उसके ऊपर से एक्शंस लेने की जरूरत पड़ सकती है। अगर हम गवर्नमेंट का जो सपोर्ट आ रहा है, रिलीफ पैकेज आ रहा है, उसका हम बेनिफिट ले पाए तो अपना बजट कैसा रहेगा, हम वो बेनिफिट नहीं ले पाते तो बजट कैसा रहेगा, क्रेडिट कैसे मिलेगा, एडिशनल बोरोइंग हम कैसे करेंगे, एवरीथिंग शुड बी इंक्लूडेड व्हाइल यू प्रिपेयर दिस कैश फ्लो प्लानिंग एंड बजटिंग। ऑल्सो एसेस व्हाट इज योर कैश ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट यानी ऐसा पॉइंट जिसके बियॉन्ड जब आप कैश जनरेट करते हो, टर्नओवर जनरेट करते हो तो वो प्रॉफिटेबल है, और उसके बिलो होते हो तो वो लॉस मेकिंग है। तो आपका कैश ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, और ये फाइंड आउट करने के लिए आपको पहले जो भी एक्सपेंडिचर है उसमें वेरिएबल एक्सपेंडिचर कितना है, फिक्स्ड एक्सपेंडिचर कितना है, वो बाइफर्केशन करना पड़ेगा। और ये सब चीज जो बजटिंग के अंदर की जाती है टिपिकली, विच इज नॉर्मली वेरी डिफिकल्ट फॉर कंपनीज टू डू देम themselves, and therefore we come into picture, we help companies design and create these budgets and track those budgets on an ongoing basis, ताकि एक वेरिएंस कितना है वो पता चले और फर्दर एक्शंस लेने की पता चल सके। रेवेन्यू अगर ड्रॉप होता है तो कैसे रहेगा, फिक्स्ड कॉस्ट हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, ये सब चीज ये कैश फ्लो प्लानिंग और बजटिंग के ऊपर से हम प्लानिंग कर सकते हैं।
Going to the second point, which is on additional financing facilities और गवर्नमेंट की जो स्कीम्स अनाउंस हो रही है कॉन्स्टेंटली, और आगे जाके भी वी बिलीव इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स गवर्नमेंट इज कॉन्स्टेंटली गोइंग टू कम अप विथ वन स्कीम आफ्टर द अदर, क्योंकि जिस लेवल की क्राइसिस है उसको कंफर्टेबली और स्मूथली कंपनीज राइड कर सके, उसके लिए गवर्नमेंट का काफी इंटरवेंशन और सपोर्ट चाहिएगा। तो फॉर ऑर्गेनाइजेशंस सबको ये देखने की जरूरत है कि एग्जिस्टिंग क्रेडिट फैसिलिटीज क्या है, कैसे है, व्हाट इज योर करंट कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, आपकी जो भी क्रेडिट फैसिलिटीज है उसमें कितनी कॉस्ट है। इवेल्युएट वेदर यू आर एमएसएमई, आप एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हो कि नहीं, अगर है तो आपने रजिस्ट्रेशन किया है कि नहीं किया, क्योंकि गवर्नमेंट की काफी स्कीम्स है वो एमएसएमई के ऊपर फोकस्ड है। आइडेंटिफाई अदर बेनिफिट्स अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कॉन्स्टेंटली जो बेनिफिट्स आज तक आए हैं और आगे जाके आएंगे उसको हम कैसे यूजफुल यूज कर सकते हैं। एक्सप्लोर एप्रोप्रिएट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर अवेलिंग द बेनिफिट्स, काफी जगह पे इंटरेस्ट रेट वगैरह का नेगोशिएशन की जरूरत है और वो नेगोशिएशन कैसे किया जाए वो देखने की जरूरत है। रिस्ट्रक्चर द एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज इन लाइट ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, अगर आप टेम्पररी ये गवर्नमेंट की कोई फैसिलिटी लेते हो, आगे जाके वो आपको लॉन्ग टर्म कंटिन्यू करनी है कि शॉर्ट टर्म रहेगा, कौन से स्टेज पे आपको लीवरेज कम करना है, स्पेशली हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जहां जहां है वो आप कैसे कम कर सकते हो, ये सब चीज देखने की जरूरत है। ये फैसिलिटीज जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किए वो आत्मनिर्भर भारत अभियान आपने सुना ही होगा, काफी पढ़ा होगा, जिसके अंदर इट इज अनाउंस्ड के 3 लाख करोड़ वर्थ ऑफ collateral free automatic loans will be made available to MSMEs especially, और ये एग्जिस्टिंग जो टर्म लोन या फैसिलिटीज रहेगी उसका 20% तक का एडिशनल फाइनेंस मिलेगा, जिसके अंदर 29 मार्च को आपकी जितनी भी क्रेडिट फैसिलिटी थी उसके ऊपर 20% गिना जाएगा। हाउएवर ये पर्टिकुलर स्कीम जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन है उसके अंदर आपकी आउटस्टैंडिंग लोन शुड बी लेस देन 25 करोड़ एंड टर्नओवर शुड बी लेस देन 100 करोड़, उनके लिए ये पर्टिकुलर स्कीम है। और ये अवेल करने की जो टाइमलाइन है इज अप टू अक्टूबर 2020 और व्हेन दिस 3 लाख करोड़ इज एग्जॉस्टेड, यानी ये अपर कैप है ये 3 लाख करोड़ का, वो एग्जॉस्ट हो जाएगा तो ये स्कीम बंद हो जाएगी, which means कि हो सके उतना फास्ट whoever is eligible for this scheme should try to avail of this scheme. Apart from that there are other elements to this particular आत्मनिर्भर भारत अभियान, जिसके अंदर 20,000 crores of subordinated debt is given for MSMEs जो NPA है या वो कैटेगरी में आ रहे हैं। तो पहले अपन देखते हैं कि MSME रजिस्ट्रेशन क्या है और कौन उसके अंदर एलिजिबल है। So that if you have not already registered, I would really request all of you to register as soon as possible, क्योंकि जितनी भी benefits और schemes है वो ज्यादातर MSMEs के लिए ही है। तो MSME में रजिस्टर कोई भी सोल प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, LLP हो या प्राइवेट पब्लिक कंपनी 1% कंपनी हो या एनी लीगल एंटिटी, all of them can be registered as MSME. MSME में अभी तक का जो डेफिनेशन हुआ करता था उसके अंदर प्लांट एंड मशीनरी में आपका इन्वेस्टमेंट ओरिजिनल कॉस्ट से कितना है उसके ऊपर है। तो इफ योर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इज लेस देन 10 करोड़ देन यू आर एलिजिबल फॉर MSME रजिस्ट्रेशन। अभी रिसेंटली उन्होंने डेफिनेशन चेंज किया है, हाउएवर वो अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ है, विच मीन्स इवन टिल नाउ द ओल्ड डेफिनेशन इज स्टिल इन फोर्स, और जब ये नोटिफाई होगा तब से लेके नया डेफिनेशन आएगा। जो नया डेफिनेशन आया है उसमें माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम कैटेगरी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है वो 10 करोड़ से बढ़ा के 20 करोड़ किया गया है, और जो टर्नओवर का लिमिट है वो 100 करोड़ रखा गया है। सो टिल नाउ इन द पास्ट देयर वाज नो लिमिट एज सच ऑन द टर्नओवर, सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी का ही लिमिट था, पर नाउ इन द न्यू स्कीम ऑफ थिंग्स देयर इज अ लिमिट इवन ऑन द टर्नओवर। तो जो भी 100 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है उनको MSME का बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाउएवर आई अगेन रिपीट कि आज की डेट में ये नया ये क्राइटेरिया नोटिफाई नहीं हुआ है, विच मीन्स कि जब तक ये नोटिफाई नहीं होता है तब तक आपका पुराना MSME का रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू रहेगा। देयर इज ऑल्सो अ डिस्कशन गोइंग अराउंड विद इन द मिनिस्टर्स एज वेल
कि ये 100 करोड़ की लिमिट बढ़ा के 200 या 250 करोड़ करनी चाहिए. So we really hope that will happen, in which case 200 या 250 crore of turnover and 20 crore of investment in plant and machinery together will be the new threshold criteria. MSMEs के लिए ऑलरेडी आप देखें तो पिछले कुछ साल में काफी स्कीम्स गवर्नमेंट लाई है और वो स्कीम्स में कांस्टेंट बढ़ावा हो रहा है. न्यू स्कीम्स आर कांस्टेंटली कमिंग. So there is one scheme which is the Credit Guarantee Trust Fund for Micro and Small Enterprises, जिसके अंदर ये मिनिस्ट्री ने और सिडबी ने मिलकर ट्रस्ट क्रिएट किया है जिसका नाम है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, जिसके अंदर कोलेटरल फ्री लोन दी जाती है अप टू 1 crore फॉर इंडिविजुअल MSMEs ऑन पेमेंट ऑफ गारंटी फी टू द बैंक. तो कंपनीज को कोई अलग से गारंटी नहीं देनी है, ये ट्रस्ट है वो गारंटी देगा ऑन बिहाफ ऑफ द MSME और उसकी एक फीस है जो भरनी है. सेकंड जो स्कीम है जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, अगेन ये नई स्कीम नहीं है, ये काफी टाइम की से है एंड दैट इज रिलेटेड टू द क्वालिटी एस्पेक्ट. आपके प्रोडक्शन के अंदर हाई क्वालिटी हो उसके लिए ये स्कीम है. क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी मैनेजमेंट टूल्स के रिलेटेड काफी स्कीम्स है. ऑलरेडी एक लीन मैन्युफैक्चरिंग का स्कीम काफी टाइम से गवर्नमेंट का चल रहा है, टेम्पररी उसको सस्पेंड किया है बट दे आर कमिंग अप विद दैट स्कीम इन अ न्यू अवतार, तो दैट शुड आल्सो बी अवेलेबल सून. इंक्यूबेशन के रिलेटेड स्कीम्स है, खास करके न्यू आइडियाज, न्यू डिजाइन, न्यू प्रोडक्ट के लिए जो स्टार्टअप है उसके लिए है. देन देयर इज अ क्रेडिट लिंक कैपिटल स्कीम फॉर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन. ये स्पेसिफिक इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल के अंदर ऑलरेडी है. फूड प्रोसेसिंग के अंदर अगर कोई भी आप प्रोजेक्ट डालते हो तो 50% तक की कैपिटल सब्सिडी है और लोन अप टू 2% इंटरेस्ट पे लोन मिल सकता है. Gem and jewelry industry के लिए Gem and Jewelry Council has already been representing with the government and we have been helping the GJEPC to design a scheme and which is at an advanced stage with the government. टूंक समय में वो भी स्कीम अनाउंस हो जाएगा तो Gem and Jewelry companies भी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के अंदर कैपिटल सब्सिडी और इंटरेस्ट रेट सब्सिडी ले पाएंगे. वुमन एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी देयर आर डिफरेंट स्कीम्स. तो विदिन MSME आल्सो देयर आर डिफरेंट एवेन्यूज to avail of various benefits. Then we look at this very important COVID-19 emergency credit line जो मैंने already आगे बताया, जिसके अंदर 20% of outstanding loan amount है, उतने amount तक का आपको लोन मिल सकता है जिसके अंदर कोई collateral नहीं चाहिए. 100% गारंटी होने वाला है by the National Credit Guarantee Trust Company. बैंक NBFC को ये गारंटी मिल जाएगा जिसके अंदर कोई गारंटी फीस भी नहीं है, पर आपकी जो ऑलरेडी कोलेटरल दी गई है उसके ऊपर पारी पैसिव चार्ज क्रिएट करना रहेगा 90 डेज में. रीपेमेंट के लिए 12 महीने का मॉरेटोरियम दिया गया है एंड देयर आफ्टर भी 4 साल के अंदर रीपेमेंट करना है. इंटरेस्ट रेट का कैप लगाया गया है विच इज कमिंग टू, यानी मैक्सिमम रेट विल बी 9.25% पर एनम बैंक के लिए और NBFC है तो 14%, पर इफेक्टिवली वी हैव सीन कि उसमें नेगोशिएट होके इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कुड बी एनीवेयर इन द रेंज ऑफ 7 to 8% व्हिच इज एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में GST रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए और जो लिमिट्स ऑलरेडी बताई गई है 25 करोड़ तक का बोरोइंग और 100 करोड़ तक का आपका टर्नओवर हो उसके लिए ये इफेक्टिव रहेगा. जो डॉक्यूमेंटेशन ये इमरजेंसी क्रेडिट लाइन के चाहिए और बाकी भी काफी जो स्कीम्स फाइनेंस की या फैसिलिटी है उसके लिए स्टैंडर्ड लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है. काफी चीज आप रेडी रख सकते हो अगर ऑलरेडी आपके पास फाइल प्रिपेयर्ड नहीं है तो पैन कार्ड, GST रजिस्ट्रेशन, MSME उद्योग आधार सर्टिफिकेट, KYC ऑफ बोरोवर, आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस वगैरह चाहिएगा, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, लेटेस्ट LLP डेट, latest CA certified stock statements, GST returns filed till last month, audited financials and ITRs for the last 3 years, cash flow statement of estimated expenses, CMA data with financial projections for 5 years. जो लास्ट आपका 2019-20 का जो साल था उसके लिए आइदर ऑडिटेड रिपोर्ट या फिर मैनेजमेंट सर्टिफाइड टर्नओवर डिटेल्स, लास्ट 6 महीने के बैंक स्टेटमेंट्स, कॉपी ऑफ सैंक्शन लेटर ऑफ ऑल ऑनगोइंग बोरोइंग्स.
तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको ये इमरजेंसी क्रेडिट लाइन के लिए भी चाहिएगा या एनी अदर फैसिलिटी। इसके अलावा भी देर आर फ्यू अदर स्कीम्स विच आर देयर। सो क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट की जो मैंने ऑलरेडी बात की, उसके अंदर न्यू एंड एग्जिस्टिंग एमएसएमईज को ये मिल सकता है। मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एक्टिविटी दोनों एक्टिविटी के लिए अवेलेबल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो नॉर्मल जो रेट है प्लस 1.5% तक का गारंटी फीस एप्लीकेबल रहेगा। लोन अमाउंट इज अप टू 2 crores, tenure could be 5 years, there is no collateral required. Then there is Stand Up India scheme, जिसके अंदर SC ST एंटरप्रेन्योर्स के लिए या वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये स्कीम है। This is the purpose is setting up new enterprise in manufacturing, trading और service sector, जिसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहेगा, there is a different रेट ऑफ इंटरेस्ट जो नॉर्मल MCLR जो बोलते हैं वो रेट प्लस 3% रहेगा, and the amount could be anywhere between 10 lakhs to 1 crore, and the tenure could be 7 years with a moratorium of up to 18 months. Again here कोई collateral की जरूरत नहीं है, थर्ड पार्टी गारंटी की जरूरत नहीं है। Then there is a safe scheme, ये स्कीम सिडबी ने निकाला है। स्पेशली कंपनीज जो कोविड-19 रिलेटेड कोई भी एसेंशियल प्रोडक्ट्स बनाती है, PPE किट्स है, मास्क बनाती है, ऐसी कोई भी कंपनी को ये मिल सकता है एट अ 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट और 100% फाइनेंस विद मैक्सिमम लोन अप टू 50 lakhs का मिल सकता है। 5 years का इसमें ड्यूरेशन है विथ 1 year मोरेटोरियम। इसके बाद मुद्रा लोन स्कीम है, अगेन फॉर स्मॉल बिजनेसेस एंड MSMEs के लिए है। ये खास करके माइक्रो एंड स्मॉल बिजनेसेस के लिए है, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कुड बी 8.05% ऑनवर्ड्स। उसके अंदर 3 अलग अलग कैटेगरी है डिपेंडिंग ऑन द लोन अमाउंट, एंड मैक्सिमम लोन अमाउंट हियर कैन बी अप टू 10 lakhs, टेन्योर कुड बी अप टू 5 years। तो ये ऑलरेडी काफी स्कीम्स, ऐसा नहीं है कि ये सब स्कीम नहीं है। सेफ स्कीम हालांकि अभी अनाउंस की है, पर बाकी की 3 स्कीम ऑलरेडी काफी टाइम से चालू है। Similarly, there is this one very important new mechanism which has been created. Again, this is not a new mechanism specifically in the context of COVID-19, पर ये recently थोड़े टाइम पहले announce हुआ था, and it has been created very recently. That is to do with trade receivable discounting system. So receivable exchange of India limited करके अभी एक ये कंपनी है और उनका प्लेटफॉर्म है जिसको कहते हैं TRDES। ये प्लेटफॉर्म के अंदर, दिस इज अगेन मेनली फॉर द MSMEs, जिसके अंदर बायर और सेलर दोनों को ये प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर होना है, उसका KYC वगैरह जो प्रोसीजर है वो करना है, एंड फिर जो भी सेलर है वो जो टैक्स इनवॉइस है ये प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर सकता है, जिसमें क्रेडिट पीरियड या फिर अनएक्सपायर्ड क्रेडिट पीरियड मिनिमम 15 दिन का होना चाहिए। और वो इनवॉइस जो सामने वाली पार्टी है, जो परचेजर है, they have to accept that invoice online, यानी उनका एक्सेप्टेंस देना है कि यस ये इनवॉइस सही है, ये गुड्स मैंने परचेज किए हैं एंड आई एम लायबल टू पे दिस अमाउंट, इन विच केस ये इनवॉइस विल बी सब्जेक्ट टू और एलिजिबल फॉर फाइनेंसिंग। देयर इज एन ऑनलाइन ऑक्शन का सिस्टम है जिसके अंदर जो भी फाइनेंशियर होगा, ये बैंक हो सकती है, NBFC हो सकती है, कोई कॉर्पोरेट्स हो सकते हैं, दे विल बिड ऑन दिस पर्टिकुलर इनवॉइस and they'll finance this invoice. Normally इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.95% से लेके 12.40% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। और जैसे स्टॉक मार्केट के जैसे ये पूरा एक्सचेंज फंक्शन करता है, जैसे ही कोई पर्टिकुलर फाइनेंशियर ने ये इनवॉइस फाइनेंस करने का तय किया, देयर अकाउंट विल बी डेबिटेड और जो भी सेलर था उनका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, एंड लेटर ऑन जब ड्यू डेट आएगा तब सेलर का अकाउंट डेबिट हो जाएगा और फाइनेंसर का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। So this is a very interesting concept which has been introduced. A lot of people may not be aware about this, but I'm sure this can be very very useful. तो अगर आपने ये ट्राई नहीं किया है तो ये करने की जरूरत है। और ये जितनी भी चीज फाइनेंस रिलेटेड की हम बात कर रहे हैं, उसके अंदर आपको कोई भी असिस्टेंस चाहिए, एनी टाइम वी विल बी ग्लैड टू हेल्प यू। द थर्ड actionable point in our 10-point action plan is recovering amounts stuck up in GST and income tax. अगेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, काफी लोगों की बहुत सी अमाउंट स्पेशली GST में स्टकअप है, तो उसके अंदर मेहनत करने की जरूरत है, कैसे अपन ये अमाउंट रिलीज करवा पाए।
तो जस्ट टू गिव एन एग्जांपल कि हमारे जितने भी क्लाइंट्स जिनके लिए हम जीएसटी का कंप्लायंस सर्विस और सर्विसेज देते हैं, जनवरी 2020 तक के ऑलमोस्ट सभी के रिफंड क्लेम्स क्लियर हो चुके हैं और पेमेंट आ चुके हैं. Even during this lockdown period, we have been able to realize more than 10 crores का amount as refund. कई क्लाइंट की ऑफिसेस बंद थी, डीएससी ऑफिसेस में लॉक थी, तो नई डीएससी जनरेट करके भी वी हैव बीन एबल टू गेट ऑल दिस रिफंड्स क्लियर्ड. सेकंड जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आईटीसी का ब्लॉकेज. तो बहुत सी कंपनीज का बिजनेस मॉडल फॉर वॉट एवर रीजन ऐसा हो सकता है कि जिसके अंदर कहीं ना कहीं आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक हो रहा है, वो रिफंडेबल नहीं हो रहा है. तो उस केस में बिजनेस मॉडल इटसेल्फ कैसे ऑप्टिमाइज किया जाए वो सोचने की जरूरत है. कोई ओल्ड रिफंड मैटर्स अटकी हुई है कहीं पे भी, तो ऐसी चीज में कैसे अपन परस्यू करके रिफंड ला सके. सो इन वन ऑफ अवर क्लाइंट केसेस we filed a petition before the high court and uske through we have been able to recover 8 crores of old refund which was stuck up for some technical reason. तो ऐसी कोई भी पुरानी चीज अटकी हुई है तो उसके ऊपर भी फोकस करने की जरूरत है. अदर एस्पेक्ट्स सच एज क्वार्टरली रिव्यू, एडवाइजरी, रिप्रेजेंटेशन, ये चीजें हम कॉन्स्टेंटली करते हैं. जीएसटी कंप्लायंस, प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंटेशन, एग्जीक्यूशन ऑफ एग्रीमेंट्स या कॉन्ट्रैक्ट्स विद वेंडर्स, थर्ड पार्टीज कवरिंग जीएसटी इंट्रिकसीज, प्रॉपर कंप्लायंसेस. ये एक चीज आप अभी like I'm sure you attended our GST webinar and also went through a lot of news flash which we have been sharing. But एक चीज जो गवर्नमेंट ने अभी डाली है जिसके अंदर if the supplier of service doesn't pay the GST, then you'll not get the credit for that amount while you are claiming your credits. So it is very important to reconcile your balances with the supplier and also ensure कि supplier time से GST भर देते हैं और right तरह से वो फाइलिंग करते हैं. तो ये सब चीज में सपोर्ट की काफी जरूरत हो सकती है. Reconciliation of financial statements, even internal आपके financial statements reconciled होने चाहिए. तो all this is what we help our clients और उसके थ्रू काफी कैश फ्लो लेवल पे मदद रूप हो सकते हैं. Even income tax के अंदर a lot of companies have a lot of amounts stuck up in IT refunds. तो गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी अनाउंस कि जितने लोगों के 5 लाख तक के रिफंड आउटस्टैंडिंग है वो तुरंत रिलीज कर देंगे. However, we have seen कि बड़े भी रिफंड हो, कितने भी बड़े रिफंड हो, वो भी we have been able to represent and claim and get that refund. उसके लिए ट्विटर थ्रू हम ट्वीट करते हैं, रिप्रेजेंटेशंस करते हैं, and we have seen that the government has been very very proactive. आज हमने कुछ रिप्रेजेंट किया और 3 दिन के अंदर अंदर रिफंड आ जाता है. तो आई थिंक अगर आपके कोई भी अमाउंट जीएसटी या इनकम टैक्स में स्टकअप है तो उसमें आएगा, आने वाला तो वैसे भी है, पर if you want to get that amount sooner, then you need to really focus some effort and energy on that and ensure that you receive this amount as soon as possible so that it is useful in this cash flow requirement situation. Next, fourth is recovering overdue receivables and optimizing other assets. So काफी लोगों को पता होगा ये insolvency and bankruptcy code अभी जो है, under this code if any private limited company, any corporate के पास से अगर आपको कोई भी amount receive करना है and if it is undisputed or the corporate is not paying you, then you can always file a suit. You can always go under this insolvency and bankruptcy code NCLT को and in all probability you'll recover that amount very soon. पहले तो आप सूट फाइल करते हो या उसकी नोटिस देते हो, वो ही लेवल पे अगर अनडिस्प्यूटेड अमाउंट है तो आपको रियलाइज हो जाएगा, बिकॉज नो कॉर्पोरेट विल विश टू गो इनटू अ लिटिगेशन ऑन दिस एस्पेक्ट. उनका काफी नाम भी खराब हो सकता है, तो दे विल श्योरली पे. And even if they don't pay, then you'll be able to realize it through this mechanism. उसके अलावा again if you are MSME registered, there is a protection available कि 45 days में आपको अगर पेमेंट नहीं मिलता है तो you can always raise a claim, you can go to the court to claim the amount और आपको इंटरेस्ट के साथ अमाउंट वापस मिलेगा. इंटरेस्ट कितना, तो इट इज 3 times the RBI बैंक रेट, इफेक्टिवली अराउंड 13% जितना पर एनम का आपका इंटरेस्ट के साथ ओवरड्यू अमाउंट रिसीव हो सकता है. Similarly, you need to look at optimizing a lot of other assets
अगर इन्वेंट्री है कैसे रिड्यूस की जा सकती है, अगर कोई रियल एस्टेट पड़ी हुई है जो अनयूज्ड है तो उसको लीज आउट कैसे करें या कैसे उसको प्रोडक्टिव किया जाए, कोई भी अनप्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स है कैसे लिक्विडेट किया जा सकता है, ऐसे करके अनप्रोडक्टिव एसेट्स में से कैसे हम कैश रियलाइज कर सकते हैं. That is what you need to really see. The fifth actionable point is optimizing supply chain for reduced cost and continuity. So again we have seen कि because of ये COVID-19 काफी supply chain disrupt हो चुकी होगी. काफी लोगों को you will not be able to get timely delivery of raw material जो आपको चाहिए आपके manufacturing के लिए, या फिर उसकी क्वालिटी से लेके क्वांटिटी से लेके काफी चीज में प्रॉब्लम हो सकती है. तो वो सब चीज में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पूरा सप्लाई चेन के ऊपर फोकस करके कैसे ऑप्टिमाइज किया जा सके, साथ साथ में बिजनेस कंटिन्यूटी कैसे इंश्योर हो सकती है. इफ यू आर डिपेंडेंट और रिलायंट ऑन ओनली 1 or 2 सप्लायर तो कैसे नए सप्लायर्स आप ढूंढ सकते हो. स्पेशली आप अगर इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स यानी रॉ मटेरियल वगैरह इंपोर्ट करते हो, यू आर डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट्स, देन इट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट कि उसका कुछ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन अगर आप ढूंढ पाओ तो, बिकॉज एज वी ऑल नो कि अगर इंडिया में से तो कुछ भी लाइक ट्रांसपोर्ट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग, काफी रिलैक्सेशंस आ चुके हैं, पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स वगैरह रिज्यूम होने में काफी टाइम लग सकता है. एंड सम ऑफ द कंट्रीज स्पेशली चाइना से अगर कुछ भी आना है देन बहुत दिक्कत हो सकती है. So it is very important to diversify your supply chain. Similarly, there could be a scope to renegotiate procurement prices, terms and conditions वगैरह. तो अगर आपने अच्छे टाइम में किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया है एट अ पर्टिकुलर प्राइस या कॉस्ट, पर्टिकुलर क्वांटिटी आप लिफ्ट करोगे, ऐसा अगर कोई भी आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हो तो वो सब रीनेगोशिएट करने की जरूरत हो सकती है इन लाइट ऑफ COVID-19. Similarly, transport cost probably would be going down because oil prices are coming down. या फिर अगर इनपुट के अंदर जो सप्लायर की कॉस्ट है उसके एलिमेंट क्या है अगर आप देखें तो उसके अंदर काफी ऐसे एलिमेंट्स हो सकते हैं जहां पे रॉ मटेरियल प्राइसेस कम हुए हैं. If so, then you can always request the supplier to lower your product prices. तो वो भी एक देखने की पॉसिबिलिटी हो सकता है. So all in all, there could be a lot of possibilities to optimize your supply chain, reduce your cost of procurement, make the entire supply chain more robust and efficient just in time, and that way you can overall improve your own sort of manufacturing या delivery या product आप जो भी चीज में है वो. Next, sixth is optimizing the manpower cost. Again, over the years जब अच्छा टाइम चल रहा था, most of the companies would have added a lot of flap. काफी unproductive manpower add हुए होंगे या पूरी efficiency से manpower के पास आप काम नहीं ले पा रहे होंगे. Manpower cost was continuously going up, and overall because for the people also उनके पास इतनी सारी opportunities थी job के लिए, and especially younger people, they kept on hopping from one job to another, और ये सब चीज के अंदर overall efficiency and productivity took a lot of beating. So now there is a need to refocus on how to optimize the manpower cost. Again इसके अंदर काफी dimension है, starting with ये लॉकडाउन पीरियड के अंदर अगर आपके ऑपरेशंस बंद थे उस दरमियान आपको पेमेंट करना है कि नहीं करना है, उसकी लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है, मॉरल आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस ऑन दैट एंटायर थिंग, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है. अगर लॉकडाउन उठ जाने के बाद वंस यू रिज्यूम द ऑपरेशंस बट यू आर नॉट एबल टू रिज्यूम एट फुल कैपेसिटी या फुल लेवल एज पर आपका प्री क्राइसिस लेवल, तो अगर आपको टेम्पररी कुछ लोगों को ले ऑफ करना है या टेम्पररी फैक्ट्रीज बंद रख के लॉकआउट अनाउंस करना है, पीपल को रिट्रेंच करना है, तो उसके रिलेटेड क्या प्रोविजंस है, ये सब चीज के लिए लीगल रिक्वायरमेंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. वी हैव डन अ नंबर ऑफ वेबिनार्स ऑन दिस सब्जेक्ट, इसकी वेब लिंक्स भी अवेलेबल है, इफ यू वांट वी कैन शेयर दोस. बट ये अच्छी तरह से समझ के उसके ऊपर से कॉन्शियस डिसीजंस लेने बहुत ही इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट कम्स how many people do you really require in your current and projected workload के हिसाब से.
suppose your sales has gone down and even the expected sales over the next few months are going to be lower than what they are, तो आपको कितने जन चाहिए? So how do you really optimize the number of people? इसके लिए also we have brought a simulation software through which we map the entire process that is happening in your factory, और उसके ऊपर से कहाँ पे excess manpower है, कहाँ पे आप reduce कर सकते हो, वो सब चीज अपन simulate कर सकते हैं. There could be a need to do competency assessment. Again, we have been doing a lot of online competency tests for people so that आप चेक कर सको कि आपकी जो टीम है उसके पास आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो उसके लिए do they have the right competencies or not. Converting fixed salaries into fixed and variable salary. Again, this is one thing on which we have been helping a lot of companies जहाँ पे पूरी fixed salary का framework है, and which may not be the most ideal situation because if you have fixed cost, your break even point is going to be very high. और अगर आपको ब्रेक इवन पॉइंट कम करना है तो some part of your fixed cost needs to be variable. So that is something to be looked into. Increasing productivity of the employees, इसके लिए ट्रेनिंग से लेके इंसेंटिव पेनल्टी सिस्टम से लेके काफी चीज हो सकती है. Again, on the statutory and legal side, जैसे PF है तो government has announced a lot of relaxations. Suppose you are an enterprise employing less than 100 people आपके वहाँ है, and if 90% of them are earning less than 15,000 per month, तो वो केस में 3 महीने के लिए PF का contribution employer का और employee का दोनों contribution is going to be paid by the government. So you should be aware of this, and if you are falling in this category, आपने ये benefit लिया है कि नहीं लिया है. And for everyone else, 12% का जो normally PF का rate है, 12% is to be contributed by the employer, 12% by the employee. वो दोनों को कम करके for this 3 months it has been reduced to 10% instead of 12%. तो 2% का उसमें saving है. Again, you should be aware of this, and you should be paying only 10% and not 12%. There have been also relaxations in due dates for PF, ESIC and various statutory payments. So again, this is one very important area on which a lot of companies को बहुत support और assistance चाहिए, and we have been doing that day in, day out. Next, 7th is efficiency in operations. So this is all about your ongoing operations. उसको आप कैसे efficient कर सकते हो. उसके अंदर lean manufacturing से लेके काफी techniques है. Lean manufacturing के जो core principle है, उसके हिसाब से if you identify wastes in your entire process and if you reduce those wastes, you will be more efficient. उसमें 9 type of wastes है. इनफैक्ट जो आइडियल थियरी है उसमें 8 तरह के वेस्ट को डिफाइन किया गया है, बट वी हैव एडेड वन मोर कैटेगरी विच इज द 9th. सो फर्स्ट इज एक्सेस इन्वेंट्री. जो भी इन्वेंट्री आपकी रिक्वायरमेंट से ज्यादा आप कैरी कर रहे हो वो वेस्ट है, एंड दैट इज मेकिंग योर ऑपरेशंस इनएफिशिएंट. सो रिड्यूस दैट. अननेसेसरी मोशन. कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोसेस या टास्क करने के लिए हैंड या फीट की जो भी मूवमेंट की रिक्वायरमेंट है वो कितनी है और वो कैसे आप कम कर सकते हो टू बिकम मोर एफिशिएंट. ट्रांसपोर्टेशन वेस्ट. आपकी फैक्ट्री में एक फ्लोर से दूसरी फ्लोर पे अगर कोई मटेरियल जा रहा है या एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन जा रहा है, ऑल दैट ट्रांसपोर्ट इज नॉट एडिंग एनी वैल्यू टू योर प्रोडक्ट, एंड देयरफॉर जितना कम ट्रांसपोर्टेशन रहेगा उतने आप ज्यादा एफिशिएंट होंगे. वेटिंग टाइम. अगर आपके एम्प्लॉयज या कोई भी इंपॉर्टेंट मशीन आप अच्छे से पूरे टाइम के लिए यूज नहीं कर पा रहे हो, if people are waiting for the material, if the machine is waiting for someone to operate it, then there is a waste. ओवर प्रोडक्शन अगर आप करते हो वो भी एक वेस्ट है. ओवर प्रोसेसिंग या इनकरेक्ट प्रोसेसिंग करते हो. अगर कोई एक अच्छे से प्रोसेस आइडियली करने में मान लेते 5 स्टेप्स इन्वॉल्व है पर आप 6 स्टेप्स करते हो तो वो ओवर प्रोसेसिंग है. एक स्टेप आप जो एक्स्ट्रा कर रहे हो दैट इज अ वेस्ट. अगर आपके प्रोडक्ट के अंदर डिफेक्ट्स है देन दैट इज अ वेस्ट. अनयूज्ड एम्प्लॉय टाइम एंड क्रिएटिविटी. इवन ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड काफी लोगों ने सैलरीज का पेमेंट कम या पूरी सैलरीज का पेमेंट एम्प्लॉयज को किया होगा, बट हैव यू टेकन एनी बेनिफिट आउट ऑफ दैट?
during this entire period, employees were free to think about strategies, think about what new they'll do. They could have probably acquired new skills. ये सब चीज आप करवा पाए हो या नहीं करवा पाए हो? इवन ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस अगर आप 8 या 8.5 घंटे अपने एम्प्लॉयज को काम करवाते हो, वेदर दैट एंटायर पीरियड ऑफ 8 or 8.5 hours are you able to get or extract full work out of them? Are they putting all their creativity and thought process in the entire improvement process? ये सब चीज आपको क्वेश्चन करनी है. And if you are wasting that, then you will not be efficient. जितना आप वो वेस्ट कम करोगे, एम्प्लॉय की क्रिएटिविटी और टाइम का जितना ज्यादा आप बेनिफिट ले पाओगे, उतना आपका एफिशिएंसी बढ़ने वाला है. 9th point is underutilized information और टेक्नोलॉजी. सो अ लॉट ऑफ कंपनीज, आप बहुत सा डेटा कलेक्ट करते हो अपने प्रोडक्ट का, प्रोडक्शन का, सेल्स का, कस्टमर्स का. However, if you don't use that data properly for decision making, for analytics, तो आप वो इंफॉर्मेशन को वेस्ट कर रहे हो. So again, you need to eliminate that waste if you want to be efficient. Similarly, आपकी इंडस्ट्री में अगर नई टेक्नोलॉजी आई है या कोई आपने नया टेक्नोलॉजी लिया है, but if you are not optimally using it, then again that is a waste. So ये 9 type of wastes है. एक एक चीज को लेके आपको बहुत ही डीप में जाके एनालाइज करना है कि आप कौन से वेस्ट कर रहे हो और कैसे ये वेस्ट कम किए जा सकते हैं. As soon as you start reducing this waste, you will become more and more efficient. इसके अलावा you need to think of implementing quality management systems. So ISO 9000 हो या बहुत सी और quality systems है, वो implement की जा सकती है. You need to see how you can convert your fixed costs to variable. Already मैंने आगे बात किया. आपका break even point, मान लेते हैं कि आज आप 100% कैपेसिटी में से 70% पे ऑपरेट कर रहे हो, तो 70% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन से आपको प्रॉफिट मिल रहा है कि लॉस मिल रहा है? आप चेक करो कि आपका ब्रेक इवन पॉइंट क्या है. सपोज आपका ब्रेक इवन पॉइंट 65% है, तो ये सोचने की जरूरत है कि ये 65% को कम करके कैसे 50% या 55% कर सकते हो, ताकि गोइंग फॉरवर्ड भी ऐसी सिचुएशन अगर ज्यादा रहे, फिर भी आप कम ऑपरेशन से या कम कैपेसिटी में काम करने के बाद भी यू विल मेक अ प्रॉफिट व्हिच करंटली यू माइट बी मेकिंग अ लॉस. सो अगर आपका 65% का ब्रेक इवन पॉइंट है एंड सपोज यू आर करंटली able to operate at 65%, you are at a no profit no loss. But suppose आपने वो BEP कम करके 55% कर दिया, then suddenly you will start making profits even at 65% of capacity utilization. Again, fixed को variable करने की बहुत सी तरकीबें हो सकती है, and when we work with clients, we come up with a lot of options to make this happen. क्योंकि ब्रेक इवन कम करना है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि फिक्स्ड कॉस्ट को वेरिएबल करना पड़ेगा. सो इंस्टेड ऑफ ओनिंग एसेट्स, प्रोबेबली यू कुड लीज आउट द एसेट्स. प्रोबेबली आप खुद जो भी चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हो वो आउटसोर्स करने का सोच सकते हो. अगर ऑन रोल्स एम्प्लॉयज है, उसको आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर के थ्रू एम्प्लॉय कर सकते हो, क्योंकि ऑन रोल एम्प्लॉयज है, come whatever, you will have to keep on paying salary day in day out even if you are working at lower capacity. But वही चीज अगर contracted employees है और अभी आपकी capacity utilization कम है, ताकि मैन पावर रिक्वायरमेंट भी कम है, तो आप कॉन्ट्रैक्टर को बोलोगे कि भाई टेम्पररी मुझे 100 जन नहीं 50 जन ही आप भेजो. That way you will be able to reduce your overall cost. Again, normally जो देखा जाता है, it is very like emotional attachment रहता है एम्प्लॉयज के साथ, और नॉर्मली आपके ऑन रोल फिक्स्ड एम्प्लॉयज जितने भी होते हैं, you will not probably want to reduce their salaries, you will not probably feel good to retrench them. और अगर आप contractors through employees recruit कर रहे हो, in that case it is emotionally much more easier. So I am not advocating कि आप ये टाइम के अंदर you should retrench people or not. What I am just trying to say is that business should employ only those many people it is able to productively sort of उनके पास अच्छे से आप काम करवा पाए efficiently, उतने ही जन आपको एम्प्लॉय करने चाहिए, because otherwise your business will not survive. And if your business does not survive, जितने जन आपके एम्प्लॉयज है बाकी के,
उनके साथ भी आप इनजस्टिस करोगे, उनको भी आप सस्टेन नहीं कर पाओगे. So again, very important is employment of employees through contract labor. The eighth actionable point is renegotiating contracts to reduce costs as well as enforcing force majeure. So you need to look at आपके रेंट एग्रीमेंट्स हो, कोई भी AMC एग्रीमेंट्स. काफी लोगों की बड़ी फैक्ट्रीज है, उसमें जैसे एयर कंडीशनिंग का AMC है, अभी 2 महीने से अगर फैक्ट्री ही बंद है, तो whether you should be paying full amount as AMC or whether you should be paying for only the remaining months when you are operational, ये सब चीज रीनेगोशिएट करने की जरूरत है. You need to look at your contracts, उसके अंदर फोर्स मेजर के क्लॉज है कि नहीं है. बाकी भी वेंडर्स के साथ जितने भी अग्रीमेंट्स हो सकते हैं, इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, अगर फिक्स्ड प्राइस या फिक्स्ड टर्म्स एंड कंडीशंस के अगर सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स है, इवन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, आपके एम्प्लॉयज के साथ के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी whether you have force majeure and various other important clauses. If not, you need to redraft a lot of these agreements going forward so that the next time such a situation arises or emerges, you are in a better placed position. तो ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है. अगेन आई एम नॉट एडवोकेटिंग कि आपके हर एक सप्लायर वेंडर के साथ लिटिगेट करके कैसे भी उनको प्रेशराइज करके रेट्स कम करने हैं या पेमेंट नहीं करना है या अवॉइड करना है. इट इज बेस्ट टू हैव अ वेरी फ्रेंडली एंड गुड sort of relationship with all your suppliers. However, on the legal framework side, at least you need to look at the contracts to ensure that उसमें जो drafting होना चाहिए, उसमें जो conditions होनी चाहिए, वो suitable है कि नहीं for future. So this is one area where again we are helping a lot of clients. Ninth, again this may not be for immediate survival but for medium to long term growth. ये बहुत ही critical और important है. If anyone of you doesn't give importance to this, I think going forward the survival is going to be at stake. So digital transformation में क्या क्या चीज आती है, इसमें काफी चीज आ सकती है. We'll just talk about the few very important and simpler things for the sake of this presentation. तो आपका एक फॉर्मल वेबसाइट है कि नहीं, आपका ईमेल सर्वर है कि नहीं, कि अभी भी आप जीमेल हॉटमेल के मेल से ही ऑपरेट कर रहे हो, बिकॉज दैट डजंट गिव अ वेरी गुड इम्पैक्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन. आप कस्टमर को अगर मेल करोगे और जीमेल से करते हो, इट डजंट गिव अ गुड फीलिंग. यू शुड हैव योर ओन बिजनेस मेल आईडी. उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर आपकी प्रेजेंस है कि नहीं. प्रेजेंस फेसबुक पे आपकी पर्सनल कैपेसिटी में है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बिजनेस की बात कर रही है. एज अ बिजनेस, डू यू हैव अ प्रॉपर प्रेजेंस ऑन ट्विटर, ऑन लिंक्डइन, ऑन सो मेनी अदर प्लेटफॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ योर बिजनेस. आप डिजिटल मार्केटिंग यूज करते हो कि नहीं करते हो टू डेवलप बिजनेस, टू गेट न्यू कस्टमर्स. अगेन दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप ये नहीं यूज करते हो, देन यू आर अ लूजर. You will not be able to reach out to a lot of new people who are waiting for your products and services across the globe. आप physically तो कितने जन को reach out कर पाओगे, and especially in the current times when you are not allowed to meet people, you are not allowed to travel. The only medium through which you can reach out to consumers and customers globally is through digital marketing. So that is very important as part of your strategy. E-commerce और online sales, again आप स्पेशली कोई प्रोडक्ट में हो, डू यू रियली हैव अ प्लेटफॉर्म थ्रू विच आप ऑनलाइन सेल्स कर सकते हो, या जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है उसके ऊपर आप सेल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो. रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, दिस इज स्पेशली ट्रू इन द केस ऑफ ऑटोमाइजिंग अ लॉट ऑफ योर प्रोसेसेस सो दैट कम टाइम में ज्यादा एफिशिएंटली आप काम कर पाओ. सो ऑन RPA वी हैव बीन वर्किंग वेरी क्लोजली विद फ्यू कंपनीज जिसके अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा क्रंचिंग के जो काम होते हैं, जैसे बड़ी कंपनीज में GST रिकंसिलिएशन करना है, या बैंक्स वगैरह हैं जिनको करोड़ों ट्रांजैक्शन रोज होते हैं, उसको अच्छे से उसका रिस्क इवेल्युएशन करना है, उसके ऊपर कंट्रोल्स अप्लाई करके पोस्टिंग करना है, तो वो ट्रांजैक्शंस मैन्युअली सब चेक करना, उसको कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है. तो इन ऑल सच सिचुएशंस RPA plays a very important role, and going forward a lot of your processes will become automated through RPA. So आपने bot सुना होगा, chatbot, talkbot, a lot of bots
now it is becoming more and more prevalent is all about or coming out of RPA. उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशंस बढ़ रही है, वेदर यू स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग दैट ऑन दैट और नॉट. SEO एंड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, गूगल एनालिटिक्स, ये सब चीज के ऊपर आप काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो. कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट या मोबाइल एप्लीकेशंस वगैरह टूल्स आप यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो. एंड इफ यू आर यूजिंग ऑल दिस, वेदर IT सिक्योरिटी के ऊपर आप फोकस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो. बिकॉज एज सून एज यू स्टार्ट डिजिटली ट्रांसफॉर्मिंग, as soon as you start using a lot of ये Zoom वगैरह टाइप के ऑनलाइन कम्युनिकेशन टूल्स हो या ऑनलाइन पेमेंट्स हो या ऑनलाइन सेल्स या ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आप फंक्शन कर रहे हो, तो IT सिक्योरिटी अगेन बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और दिस इज वन एरिया अगेन विच अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट सो कंसर्न्ड अबाउट. काफी लोग इसमें बहुत लेजी रहते हैं, बट वी रियली एडवाइज कि उसमें अटमोस्ट लेवल ऑफ कॉशन चाहिए. बहुत से हैकिंग के इंसिडेंट्स ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन डेज बाहर आए हैं, काफी फ्रॉड्स बाहर आए हैं, तो प्लीज बी वेरी अवेयर ऑफ दिस. अगेन दिस एंटायर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर वी हैव बीन डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क. अवर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी लेमन टेक्नोलॉजीज is at the forefront of digital transformation for a lot of companies, not just in India, globally. The 10th actionable point is protecting whatever you have through a risk management framework and business continuity planning. तो काफी आप लोग बिजनेस में ऐसे रहेंगे where you have reached certain stage of success, आपने कुछ क्रिएट किया है, कुछ accumulate किया है, कुछ पूरा इंस्टीट्यूशन बनाया है. However, if you don't do proper risk management, तो जो भी क्रिएट करने में 10 साल लगे हैं, 20 साल लगे हैं, 50 साल लगे हैं, वो 5 दिन में पूरा डिस्ट्रॉय हो सकता है. And a lot of companies have experienced this during this COVID-19 because a lot of people were caught unaware by this sudden crisis. तो एटलीस्ट गोइंग फॉरवर्ड कैसे आप एक पूरा रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश कर सकते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि यू आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर एनी रिस्क दैट मे कम अलोंग. तो इसके अंदर यू नीड टू क्रिएट व्हाट इफ सिनेरियोज. इफ समथिंग हैपन्स तो उसमें आपको क्या इम्पैक्ट रहेगा, वो सिचुएशन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप आपको समझना रहेगा. एंड ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स as an organization, what kind of risks you are facing, that you need to understand and appreciate properly. तो forex risk हो सकता है, solvency and liquidity risk हो सकता है, credit या bankruptcy की वजह से bad debts आए, ऐसे risk हो सकते हैं, inventory stock loss आ सकता है, especially companies in the gem and jewelry industry, many of them are facing this stock loss on the inventory that they are carrying. Family succession planning, if not done correctly, then it is a major cause of conflicts, which is again a risk, and उसको भी risk management द्वारा आप resolve कर सकते हो. Regulatory risks हो सकती है, IT security की just हमने बात की, natural calamities, even employee के frauds या infidelity risk हो सकता है. तो अलग अलग टाइप के जितने भी रिस्क है, whether it is external or internal, उसको right ढंग से समझना, एक रिस्क रजिस्टर बना के कैसे उसको एड्रेस करना, उसकी पूरी इम्पैक्ट और प्रोबेबिलिटी एनालिसिस करना, एंड बेस्ड ऑन दैट एक पूरा मिटिगेशन प्लान क्रिएट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वी हैव डन अ वेबिनार अलोंग विद द जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, जिसकी वीडियो इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब. यू कैन सर्च और यू कैन आस्क फॉर दैट एंड विल बी हैप्पी टू शेयर अ लिंक. But I think this is extremely important as a subject, and we have been helping a lot of companies individually. एक area is a subject in itself. Family succession planning के ऊपर भी we had a webinar जिसकी भी video available है YouTube पे. You can just go and have a look. और काफी कंपनीज में इसको एज अ रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क या बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग का पूरा फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश करने के लिए we have been making use of ISO methodology. So in ISO, there is ISO 31000, which deals with risk management framework. There is ISO 27001, which is on IT and cyber security. There is ISO 22301, which talks about business continuity planning. ISO 27701, which is on data privacy.
ये हर एक स्टैंडर्ड को राइट ढंग से अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन में आप डिप्लॉय कर सकते हो, then I'm sure you'll have a very robust risk management framework which is going to help you not just in this COVID-19 times but forever. Again, as RSM Lemon, we have also come up with a risk management toolkit. एक पूरा publication है और उसके साथ एक toolkit है, and not just that, we have configured that in our Checkit software so that we can sit with you as clients, 1 घंटा 2 घंटा आपके साथ स्पेंड करें, आपकी ऑपरेशंस रिलेटेड डिस्कस करें, एंड वी कैन सबमिट अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड डिटेल्ड रिपोर्ट ऑन व्हाट आर द गैप्स दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड, और वो गैप्स को कैसे ओवरकम किया जा सकता है. अगेन वी हैव बीन डूइंग दिस एट अ वेरी टोकन फीस. काफी क्लाइंट्स के लिए तो वो फ्री में भी कर रहे हैं या एट अ वेरी टोकन फीस. सो आई वुड इनवाइट ऑल ऑफ यू टू टेक बेनिफिट ऑफ दिस रिस्क मैनेजमेंट टूलकिट दैट वी हैव प्रिपेयर्ड. Similarly, जो लोग बड़ी फैक्ट्रीज ऑपरेट करते हैं एंड इट वाज अंडर लॉकडाउन एंड नाउ यू आर रिज्यूमिंग ऑपरेशंस, तो उसके लिए काफी गाइडलाइंस आपको ध्यान में रखनी है फॉर द हेल्थ सेफ्टी of the people as well as to comply with the regulations which are constantly being updated या announced by Ministry of Home Affairs as well as the district administration या state government. तो उसको भी लेके we have created a comprehensive checklist in our Checkit tool so that उसके थ्रू 2 घंटे में या 3 घंटे में we can audit the entire operation and come up with the gaps कि कहाँ पे रिस्क है और उसके लिए आपको क्या करने की जरूरत है. So I invite all of you to take benefit of these two toolkits as well as the overall risk management के ऊपर हमने जो काम किया है उसके ऊपर. So these were the 10-point action plan. You need to really work individually on all of this at your end also, और जहां जहां जरूरत लगे हमारी असिस्टेंस की, we would be very glad to help you. आपने देखा होगा कि ये पूरे प्रेजेंटेशन में मैंने सेल्स के ऊपर कोई खास एम्फेसाइज नहीं किया है. श्योरली डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में ऑनलाइन सेल्स या ई-कॉम की बात आती है, पर उसके अलावा फिजिकल सेल्स की मैंने खास बात नहीं की है, बिकॉज दैट इज अ सब्जेक्ट ऑन विच एनी विच वेज आप लोग प्लान कर रहे होगे, बहुत एफर्ट कर रहे होगे, एंड दैट इज नॉट समथिंग वेयर वी मे बी ऑफ ग्रेट हेल्प. हाउएवर ऑन ऑल द अदर एरियाज वी कैन श्योरली बी ऑफ ग्रेट हेल्प. ये सब चीज करते समय आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. वी हैव बीन हेल्पिंग कंपनीज टू डिवाइस अ प्रॉपर कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी, अ कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क. अगर एम्प्लॉयज के लेवल पे आप ले ऑफ कर रहे हो, रिट्रेंच कर रहे हो, सैलरी कट कर रहे हो, या फिर जो लॉकडाउन का पीरियड था, फॉर दैट पीरियड इफ यू आर नॉट पेइंग फुल सैलरीज, तो कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए एम्प्लॉयज को, कैसे उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, क्या चीज लिखना चाहिए. सिमिलरली कस्टमर्स का ट्रस्ट इंक्रीज करने के लिए आपको कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए. ऑल दिस इज समथिंग विच वी हेल्प क्लाइंट्स टू डिवाइस अ प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटोकॉल. एक चीज ध्यान में रखना है, वेदर इट इज सेल्स, वेदर इट इज कम्युनिकेशन, वेदर इट इज डीलिंग विद दिस एंटायर सिचुएशन, आपको इनोवेटिवली और क्रिएटिवली सोचना पड़ेगा. अगेन दैट इज अ प्लेस वेयर वी हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ to come up with a lot of innovative and creative ideas which can be of great help. इसके अलावा आपको एक पूरी एग्जीक्यूशन प्लानिंग करनी पड़ेगी. इट इज मोर लाइक ऐसे समझिए कि ये वॉर लाइक सिचुएशन है. अगर एज अ कंट्री जब वॉर पे जाते हैं तो आर्मी किस टाइप का प्लानिंग करता है पूरा मिशन का, ऐसे आपको ये मिशन का प्लानिंग करने की जरूरत है, और वो प्लान के ऊपर कांस्टेंट ट्रैकिंग करके, रिव्यू करके प्लान्स को इम्प्रोवाइज करनी पड़ेगी. You will have to create a mission team to act upon the plan that you create. There should be clear bifurcation of role, responsibility, very clarity, उस पे clear या clarity होनी चाहिए, responsibility, authority किसकी क्या रहेगी, एक पूरी correcting होनी चाहिए, mission team होनी चाहिए. So if you have not already created a mission team, please do that. एक चीज और कि while we talk about survival, कैसे ये पूरी सिचुएशन को नेविगेट करना चाहिए, along with that you also need to think about growth. Once you are in a better situation, once the crisis धीरे धीरे कम होने लगे, तब कैसे फिर से नॉर्मल सिचुएशन पे रिवर्ट हो सके, कैसे ग्रोथ को परस्यू कर सके, और उसके लिए मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, क्रिएटिंग विन विन पार्टनरशिप्स, टाई अप्स. इनफैक्ट काफी लोगों की मुझे बहुत इंक्वायरीज इस दिनों आ रही है कि दे have surplus funds
they are looking for diversification in new businesses. Parallelly, there are companies who are stressed, और ऐसी काफी कंपनीज या एसेट्स अच्छी अच्छी थ्रू अवे प्राइसेस पे मिल रही है. तो कैसे ये सिचुएशन में, इफ योर कैश पोजीशन इज कंफर्टेबल, इफ यू आर लुकिंग फॉर ग्रोथ, इफ यू आर लुकिंग फॉर डाइवर्सिफिकेशन, तो ये सिचुएशन का आपको बेस्ट बेनिफिट मिलेगा. यू विल बी एबल टू get a lot of opportunities जिसमें you will be able to collaborate, partner, take over companies या businesses which are inherently good and but facing problems in the current situation. So again, ऐसी कोई requirement है तो you can reach out to us. We'll be able to connect you with both sides. If you want to sort of attract investments, or if you are looking for mergers or acquisitions, either ways you can reach out to us and we would be able to help you. As I mentioned earlier, as RSM Lemon, ये सब चीज करने के लिए अगर आपको temporary outsourced professional CFO, Chief Financial Officer का deputation चाहिए for next 2-3 months to navigate this situation, we would be glad to do that. We are also coming up with, we have partnered with the Alternate Board, which is one of the premier global institutions जिसके अंदर board level पे, strategy level पे कैसे assist किया जा सकता है. That is how that entire platform contributes or adds value. So we'll talk about that, or we'll give more information on this separately, because again it is a subject in itself. Also you need to think on ये जो right side पे पूरा circle है, these are the things on which you need to work upon, and these are the areas where we could be of help. Creating key performance indicators, KPIs, business model में कोई re-engineering की जरूरत है, revenue model को fine tune करने की अगर जरूरत है, capacity management, funding related already we have discussed, management structure पे कुछ करना है, business processes को improvise करना है. ये हर एक चीज के ऊपर we can be of help to all of you. Surely all of this additional services will be at a very token and very fair price given the current situation. Our intention is not really to take any advantage out of the situation, but be of help to all of you. But surely in order to meet our own expenses, कुछ ना कुछ commercial terms हमें रखनी पड़ेगी. So there we have thought of a framework जिसपे अंदर 3 अलग अलग टाइप के फीस का कॉम्बिनेशन रहेगा. There will be a small fixed fees which could be in the range of 2 to 5 lakhs. There could be a success based fees. तो अगर cash flows में if we are able to help you realize cash flows, या जैसे GST refunds है, या बैंक में से financing facilities या funds लाने में if we are able to be of help, there could be a success fees on the amount that you have realized, which could be around 1.5% to 3%. And then on the CFO or on the advisory या support side पे और कोई भी चीज आपको चाहिए तो it could be even on an hourly basis. You don't need to engage us on a long-term contract which could have a lot of cost. It could be even on hourly basis. We could be of service, of help. तो ये चीज आप ध्यान में रख सकते हो, and based on this you can articulate the kind of services that you require और जहाँ पे we could be of help. एक चीज I would like to emphasize कि it is not just कि अभी ये we are passing through unprecedented times, which is for sure yes. However, maybe worst is still to come. Keep this in mind. Recovery जो है पूरी economic situation की may not be a V-shaped recovery. It could be U-shaped or W-shaped recovery. काफी महीनों तक सिचुएशन खराब हो सकती है. सो ऑल ऑफ यू नीड टू रियली बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. गवर्नमेंट इज कॉन्स्टेंटली कमिंग अप विद अ लॉट ऑफ रिलैक्सेशन स्कीम्स. उसको अच्छी ढंग से समझ के हाउ एग्जैक्टली यू कैन बेनिफिट आउट ऑफ दैट, ये आपको एक कॉन्स्टेंटली सोचना है. एज बिजनेस ओनर्स आपको यू कैन नॉट रियली रिलैक्स, यू कैन नॉट लीव इट टू लक. You will have to work on all these aspects and see how to navigate the situation. आपको अपने बिजनेस रेवेन्यू मॉडल को री इंजीनियर करना है, एफिशिएंट कैसे हो सके, इमीडिएट कैश फ्लो चैलेंजेस कैसे ओवरकम कर सके, एंड लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के ऊपर आप कैसे फिर से रिवर्ट कर सके.
नॉर्मल लेवल एज वेल एज ग्रोथ फेज में आप फिर से कैसे आ सके, उसके लिए बहुत सोचने की जरूरत पड़ेगी. प्लीज वर्क ऑन दिस 10-point एक्शन प्लान. सो ऑल दिस 10 points आर नॉट समथिंग कि सिर्फ आप हमारी सर्विसेज लेंगे तो ही आप कर पाएंगे. काफी चीजें ऐसी है जो आप खुद भी कर सकते हो. सो ऑल ऑफ यू नीड टू रियली वर्क ऑन ऑल दिस 10 points. एंड wherever you think we could be of help, आपको जहां पे भी उसमें फर्दर सपोर्ट चाहिए, हेल्प चाहिए, we'll be glad to do that to ensure कि आप सही में as soon as possible you come out of the crisis and maybe convert this crisis into a great opportunity, so that going forward you don't just survive the crisis, you make the best use of it, and create a sustainable long-term very nice future for yourself and your organization. So with this, I would like to come to the concluding part of the session. We'll be glad to get feedback from you. आपकी बिजनेस और इंडस्ट्री में क्या क्या चैलेंजेस है, क्या ग्रोथ ड्राइवर्स आप देख रहे हो, क्या पोटेंशियल देख रहे हो, जो चैलेंजेस है वो चैलेंजेस के साथ आप कैसे डील कर रहे हो, व्हाट आर द रिस्क एरियाज, स्टेक होल्डर्स की क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी कंपनी में, और वो एक्सपेक्टेशन के अनुरूप how best we as RSM Lemon can play a role to help you, and कहाँ पे expertise की कमी है, what is stopping you to really address those challenges and moving on this action plan, उसके ऊपर आप हमें बताइए. We'll be really glad to discuss with you individually as well. So thank you so much. Thank you for your time and attention. There is a small survey form which we are putting it online, जिसकी यहाँ पे भी लिंक दी गई है, and we'll put on the chat bar also, and अलग से भी उसको circulate करेंगे. So if you can fill up, if you can give your response to that survey form, our team will be in a position to get back to you to help you achieve your goals. I'll be glad to take any questions also. We'll spend some time on question answers, so that if I have not addressed anything, मैंने अगर कुछ अच्छे से address नहीं किया है तो अलग से भी I can answer those questions. मैं ये लेवल पे अभी ये स्क्रीन शेयर हटा रहा हूँ ताकि हम वीडियो पे बात कर सके. I'll unmute everyone. Although I'll really request of you to keep yourself on mute so that others can. I think काफी disturbance है, मुझे फिर से mute पे लेना पड़ेगा. Maybe you can write in the chat bar and I'll be able to sort of go through the questions asked on chat. Okay, already I can see there are a few questions on the chat bar. Let me quickly go through and address them. Can a non-manufacturing company be an MSME? So yes, you can be, but depending on the kind of service that is. So I assume you are in a service sector. But if you are suppose कोई school है, तो school MSME नहीं हो सकता है. So depending on the kind of services that you provide, you may or may not be eligible for MSME. Okay, then can you advise any financial scheme is available for trading business for spare parts for earth moving, mining, construction machines? So per se, even trading businesses can register under MSME. And if you fall under the eligibility limit, then you can surely register. And if you register, then you can avail of some of the MSME schemes that have been announced. Again, जैसे मैंने बताया, MSME की अलग-अलग schemes है. तो कौन सी scheme आपके लिए appropriate है, कौन सी scheme आपके लिए काम की है, वो आपको देखना पड़ेगा. And we can always discuss offline and see how best we can be of help. The next question, what is the risk to seller in TREDS in case the buyer is unable to pay? Okay, so again, if the buyer has already accepted online the liability to pay you,
then typically the first level of liability is surely on the buyer. However, if he doesn't pay or कल को litigation create होता है, then you can surely be dragged into the litigation for two reasons. One is that the buyer भी अपने defense के लिए उसको payment नहीं करना पड़े, उसके लिए he may come up with some aspects कि आपकी product की quality अच्छी नहीं थी या whatever other disputes he may bring into picture. So because of that also you will be dragged into litigation, and even the financial institution, for whatever reason, if they go to the court, if they file a suit, they'll always make you a party to the dispute. So there is surely a possibility. However, the first level of liability is surely just on the buyers, not on the sellers. So वो चीज आप समझ लो. Okay, someone has requested for the presentation. We may not be able to share the presentation, but surely the presentation is being recorded. We'll be sharing a link of this presentation. You can always go through the presentation online by clicking on the YouTube link. Someone has mentioned, Pankaj Shah, that just in the news, MSME definition for medium enterprises has been increased to 250 crores. So जो अपन बात कर रहे थे कि वो डिस्कशन में है 200 crores या 250 crores ले जाने की बात थी. So I hope this news is correct. However, we'll have to wait for the formal notification because अभी तक ये नया eligibility criteria was not notified till date. I think not many other questions. आपका कोई भी क्वेश्चन अभी भी पेंडिंग है तो प्लीज जल्दी से आप चैट बार में लिख दीजिए. Will the MSME benefit be available to newly incorporated entity? So yes and no में जवाब है. काफी जो MSME schemes है, especially जो emergency COVID-19 funding है, that is available only for existing MSMEs जिसके पास funding facility already है. But there are surely other schemes which are available to MSMEs, even new MSMEs, including startup related काफी schemes है. So based on the nature of your business, you'll be able to get that funding. Okay, so I think there are no more questions, and I hope and assume ये session आपके लिए fruitful रहा and it added value to you and your business. If there is anything at all which we can do further, please let us know. Please do reach out to us, and please fill up the survey form so that we know if you require any help or assistance, and our team can get back to you. With this, I would like to formally end the session with a thank you note. Thank you again. Stay safe. Bye. Good evening.